योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar, friend. Today with us Dr. Gaurang Bhai Jani sir. He is a retired professor in the Department of Sociology, Gujarat University. He has 35 years teaching experience. Under his guidance, 15 students awarded PhD degree. Mm, He is a member of Senate member, Board of Studies, and chairman also. He is published many research paper and books. Sir, I welcome you on behalf of HRDC and Gujarat University. I request to Dr. Jani sir deliver his lecture. Dr. Jani sir. Friends, first of all, I would like to thank the organization for giving me this opportunity to discuss with you all one of the very important aspect of teaching community, academic community, and that is academic integrity. Academic integrity is generally known as honesty. But it is not only honesty. There are other aspects of academic integrities are. When we were students in school, college or universities, we come across, interacted with several teachers and professors. But we remember not all teachers and professors. We remember very few. And among them also, there are some one or two teachers or guru. They are our role model. तो हम सब ने ये देखा है कि हमारे स्कूल जीवन में कोई न कोई शिक्षक या टीचर हमारा रोल मॉडल था। वो क्यों रोल मॉडल थे? And every year we celebrate Teachers' Day on 5th September. And some of us also celebrate the Guru Purnima. On these days, we remember those teachers who has given us some very important lessons, not only for our subject, but our life also. हम सोचते हैं तो उनका पूरा चेहरा हमारे सामने खड़ा हो जाता है, उनकी बातें याद आती हैं और वो जैसा बोलते थे, जैसा पढ़ाते थे, जैसा सोचते थे, ऐसा करने का हम प्रयत्न भी करते हैं. लेकिन टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ द एकेडमिक इंटीग्रिटी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. Because being a teacher of sociology, I observed throughout my career that academic integrity has also some social aspect, cultural aspect. So we discuss on that particular line. Generally we see, I already told you that academic integrity is honesty. But if you see, there are 5 aspects or 5 pillars of academic integrity. So ICAI, they have recommended or they have basically discussed the 5 basic aspects or pillars of academic integrity. तो क्या ये 5 उनके बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं? Number 1 is commitment. Number 2 is responsibility. Number 3 is trust or fairness. Number 4 is courage. And number 5th is respect. तो एक कमिटमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, करेज और हिम्मत होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास की बात, और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. तो नाउ क्वेश्चन इज
कि एकेडमिक इंटीग्रिटी के ये 5 पिलर्स है, तो पांचों पिलर्स हम कैसे एज ए टीचिंग कम्युनिटी हम कैसे उसको ग्रास्प करते हैं, कैसे हमारे लाइफ में हमारे रोल में उसको हम लाते हैं। हम देखें तो पूरे स्कूल जीवन में, कॉलेज जीवन में, यूनिवर्सिटी में ये जो एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात है इज नॉट ओनली विद द टीचर्स, इज ओनली विद द स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, होल टीचिंग कम्युनिटी. So basically is related to not only teachers, but today we will focus on this particular aspect around the teacher's role. आपने देखा होगा, हमने भी अपने अनुभव में देखा है कि यूजीसी और हमारी यूनिवर्सिटीज वो वैल्यू एजुकेशन को महत्व देती है. सो ये जो वैल्यू एजुकेशन है वो जनरली उसको कैसे डिफाइन करें, हाउ वन कैन डिफाइन और इवन एकेडमिक कम्युनिटी कैन डिफाइन वैल्यू एजुकेशन. आपने भी देखा और मैंने भी देखा है, इस जनरल ऑब्जर्वेशन that if one college or university or academic institution, the management of that particular university or college is basically from a religious background or some sect background or some particular ideology background, then the concept of value education for them is move around that particular ideology or sect or ideas. But in my opinion, value education is not defined by, it's fine that everyone has a right that what is value and how to define value education. But as a citizen of this country, as a teacher, in my opinion, value education, which is directly related to academic integrity, that's why I am emphasizing it, is related to Indian Constitution. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है बेसिकली, आई थिंक उसको हम हमारे सामने रखेंगे, उस वैल्यूज को हम प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक टीचर की जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है उसको और भी एक सपोर्ट मिलता है और आई थिंक उसका एक बेस भी बनता है. तो ना हम क्या देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए टीचर. Number 1 is scientific temper. We see Constitution has always emphasized this particular aspect. That Indian society में, when we after independence, Indian society में scientific temper और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको इम्पोर्टेंट देना. और ज्यादातर साइंटिफिक टेम्पर को कौन इम्पोर्टेंट देता है, कहां पर इसके लिए एक स्पेस है? It's very simple that in educational institution or research institution. Now the question is, Indian society, and not only Indian society, throughout world also, there are some traditional aspects in our society. Some ideologies are also like that. And we think society or nature or our environment not always from the scientific perspective, but from the traditional perspective too. So as a teacher, as a professor, when there are some incidents occurring in our society, हमारे आसपास होता है और टीचर हम स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, तो साइंटिफिक टेम्पर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एक टीचर को और स्टूडेंट्स को एक एकेडमिक इंटीग्रिटी के साथ जोड़ता है. जैसे बहुत साल पहले, इन वेरी नियर पास्ट, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ था कि लोग मानने लगे कि गणपति की जो आइडल मूर्ति है वो दूध पीती है. और आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग
दौड़ने लगे मंदिर की तरफ और लोग बोलने भी लगे कि हाँ, ये गणेश की जो मूर्ति है वो दूध पीती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे टीचर इस इंसिडेंट्स के बाद स्टूडेंट्स के साथ मुझे किस तरह से पूरे इंसिडेंट्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए। आई थिंक हियर कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक टीचर को एक एकेडमिक इंटीग्रिटी देती है और उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरी बात है इक्वालिटी, समानता। तो हमारे क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे आसपास जो टीचिंग कम्युनिटी है, जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उस सबके साथ एक इक्वल बेस पर काम करना। और ये नॉट ओनली जस्ट हमारे थिंकिंग में होना चाहिए, हमारा राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहेवियर में होना चाहिए। दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये इक्वालिटी थ्रू आउट सोसाइटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है, आई थिंक वो भी एक बेस बनता है जब आप इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तीसरी एक जो बात हमारे पास आती है वो है राइट टू एजुकेशन। सो राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान को मिला, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू एजुकेशन है अप टू प्राइमरी लेवल, लेकिन इफ वी आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑल्सो, आई थिंक जो स्टूडेंट्स को ये राइट नहीं मिल रहा है या आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के सिस्टम में वो लोग नहीं हैं, उनको कैसे उसमें लाया जाए। तो व्हेन वी थिंक अबाउट एज ए टीचर students or youth at large in our country, we should also think there are number of thousands and lakhs of young people, they are not part of the university system or not they are part of a classroom. So आपको लगेगा कि उसको एकेडमिक इंटीग्रिटी के साथ क्या उसके साथ लेना देना है। लेना देना इसलिए है कि एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एज ए एकेडमिशियन जब हम एजुकेशन को देखते हैं और सोसाइटी को देखते हैं, और वी नो दैट द साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज अंडर द एज ऑफ 35, पूरा यंग कंट्री है। तो हमारे लिखने में, हमारे सोचने में, जब हम एजुकेशन को देखते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बात करते हैं और कुछ सुझाव देते हैं, तो ये राइट टू एजुकेशन वाली बात सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, ऊपर आगे तक होनी चाहिए, और जिससे हमारी सोच मुझे लगता है और क्लियर होती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श है, इक्वालिटी का जो आदर्श है, उसके साथ भी हम उसको कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। मैंने पहले भी कहा, आई ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट दैट द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी? तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट्स हमको देखते हैं क्लासरूम में, और जो इंटरेक्शन क्लास में होता है, तब हमारा जो बिहेवियर है नॉट ओनली कोट ऑनेस्ट होना चाहिए, या पूरी तरह से स्टूडेंट्स को हम जस्टिस दे सके ऐसा होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें तो है, वो हम समझते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी ऑफ द क्लासरूम। In my opinion, demography of the classroom is very important. In the past, when I was student at university before 35 years, the university classroom was limited to certain caste and religion and certain class too. Now today, because span of education has increased, the governments, different governments, state governments, central governments, they are also trying to boost the education, and more
young people are in classroom, in that context, हमारा जो क्लासरूम है वो मल्टी कास्ट है, मल्टी कल्चर है, मल्टी रिलीजन है. सो एज ए टीचर जब मैं क्लासरूम को देखता हूं तो आई शुड नॉट लुक एट दैट इज ए होमोजेनियस classroom of students. Yeah, they are homogeneous because they are students. But if you look at from the sociological point of view, they are different. क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारे क्लास में आके बैठता है. ये स्मॉल उसका रिप्लिका है हमारे क्लासरूम में. तो why I want to emphasize this point in relation to academic integrity. मैंने कई बार देखा है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम क्लासरूम में जब बोलते हैं अबाउट सम रिलीजन और अबाउट सम हैपनिंग्स, तो टीचर कई बार बोलता है कि बोलती है कि ये हमारे धर्म में नहीं होता है, ये हमारी जात में नहीं होता है, इट इज नॉट विथ our religion or our caste. Unconsciously because we are also part of one religion or community or society or family. लेकिन हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है क्योंकि टीचर जानता है कि हम कौन से धर्म के हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम कौन से धर्म के हैं. सो दूसरे जो धर्म और जात के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक अलग किस्म की सोच खड़ी होती है कि हम कौन है. ऐसा हर एक स्टूडेंट्स में नहीं होता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इसकी जगह पर हम जब भी कोई बात क्लास में बोले तो ऐसा लगे कि एज ए टीचर मैं इस देश का सिटीजन हुआ बोलता हूं. मैं टीचर हूं लेकिन इस देश का सिटीजन हूं, जिसके साथ इस क्लासरूम में न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई कल्चर. तो मुझे लगता है कि इससे जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स और टीचर के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स के मन में भी एक किस्म का भाव उत्पन्न होता है टीचर के लिए कि हाँ, ये टीचर है, इज ऑलवेज लुक होल क्लासरूम फ्रॉम नॉट वन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नॉट वन रिलीजन और नॉट फ्रॉम ओन टीचर्स ओन पर्सपेक्टिव, but from the student's perspective, from the classroom perspective. तो ये क्लासरूम में क्या है, क्या होता है? क्लासरूम में जेंडर है. हम पहले बात करते थे मेल और फीमेल, लेकिन अब हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये थर्ड जेंडर का महत्व स्थापित किया है, नाउ वी हैव LGBTQ. तो पॉसिबल है हमारे क्लासरूम में हम जो जब पढ़ाते हैं, when we interact with students, not only in classroom but outside the classroom, we have to see that our students are from different gender, not only male or female, but LGBTQ community भी है. क्योंकि अभी ये लड़के लड़कियां, ये स्टूडेंट्स इस समुदाय से अभी क्लासरूम में आने लगे हैं. एंड आई थिंक हमारे क्लास में एक भी लड़का या लड़की इस कम्युनिटी से है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारा क्लास और भी इंक्लूसिव हो जाता है. एंड व्हेन आवर क्लास इज इंक्लूसिव, हमारा जो इंटरेक्शन है वो भी इंक्लूसिव हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इंक्लूसिवनेस इज पार्ट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी. क्योंकि वो सिर्फ सोच नहीं है, हम क्लास में देखते हैं और इस तरह से वी कैन मोल्ड अवर स्टूडेंट्स. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी हम इस रूप से अभी से क्लासरूम से सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि यस, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर और अदर्स. तो ये एक बात होगी. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है क्लासरूम डेमोग्राफी के अंदर, कि कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो अलग धर्म के होते हैं, अलग कास्ट के होते हैं. तो आई थिंक in social sciences, not only in social sciences but in all other subjects, ये कास्ट कम्युनिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए. नॉट कि हम इसको पिन पॉइंट करते हैं क्लासरूम में. इन क्लासरूम ऑल आर स्टूडेंट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट.
But for example, when there is a issue of reservation, we are teaching issue of reservation in classroom. That is by Constitution of India. So how, for reservation, every teacher has her own opinion. Fine. तो हम हमारा ओपिनियन रखते हैं रिजर्वेशन के बारे में, लेकिन साथ में we have to see that in classroom there are students from different caste and communities and religion too. तुमको कैसे देखना चाहिए? तो आई थिंक इस तरह से जब हम रिजर्वेशन जैसे सेंसिटिव इश्यू को क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. आई थिंक दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द academic integrity.